ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಅನಾಥ ಮಗು ಆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ತಿರ. ಅಂತ ಅನಾಥ ಮಗು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೇಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರವಾದಿ, ನೀವೊಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆತ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೊಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಗು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮಗು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖವಾಡ, ಚಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖವಾಡ ನೋಡಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ತಾವು ಮೊಹಮ್ಮದರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ನಾನು ಅನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಗು. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಅನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ, ನನ್ನಂತ ಅನಾಥ ನೀನು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅನಾಥರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನ್ನ ಅಲಗಾಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಮುದ್ದು ಬಾಲಕ, ನಿನ್ಗೇನಾಗಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಲ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಶಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದು, ಏ ಬಾಲಕ, ಈ ಶಾಲವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಕೊಡು, ಆ ಅರಬಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಅವ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಆ ಶಾಲವನ್ನ ತಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನ್ ತಂದಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೀಡಲಾರದಂತ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ನೇರ ಬಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿಧಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗಲ್ಲೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ. ಈ ಶಾಂತಿಯುತ ದೇಶವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಂತಿಯುತ ಭಾರತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಇಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ದುರ್ದೈವಗಳು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕೂಗು, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಈ
ಇವನ್ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹೆಸರೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಾಮಿ. तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जो खाली के कायनात है, जो अर्श अजीम का मालिक है, जो यकता है और तन्हा है अपनी जात और सिफात में। और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस दुनिया के लिए विश्व हिदायत बनकर आए। मोहम्मद नामूस मोहम्मद अरबी पर हम अपनी जान निछावर कर देंगे। नामूस मोहम्मद अरबी पर हम अपनी जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा तो हम वक्त का दामन भर देंगे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तमाम आलमीन का मतलब यह है कि इस कायनात में बसने वाली 18,000 मखलूकात के लिए हमारे नबी को रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हैवानात, तमाम मुशरिकीन, तमाम काफिर, तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गुस्ताख रामगिरी हरामगिरी के लिए भी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाती नरसिंहानंद रामी एक हैवान के लिए भी रहमत बनाकर भेजा गया। नुपुर शर्मा जैसी जाहिल लड़की के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवीन जिंदाल जैसे बुरे आदमी के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। टी राजा सिंह जैसे हैवान के लिए हमारे नबी को रहमत बनाकर भेजा गया। हमारे नबी सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है। अगर वो हमारे नबी की शान को जानते, अगर वो नबी की मुकाम को जानते तो वो ऐसी बातें ना करते, वो ऐसी गुस्ताखियां ना करते। एक यहूदी उसका नाम माइकल हार्ट नामी एक यहूदी है, जिसने एक द हंड्रेड नामी एक किताब लिखी। वो यहूदी ने पहला मुकाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा। दुनिया के टॉप 100 मशहूर लोगों की उसने लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में यहूदी ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नाम दिया। उसने 28 साल की रिसर्च की। 28 साल की रिसर्च करने के बाद उसे मजबूरन हमारे नबी का नाम देना पड़ा। एक बार लंदन में एक प्रोग्राम में वो एक स्पीच कर रहा था, तो लोगों ने उससे पूछा कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पहले नंबर पर क्यों दिया। उसका जवाब तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताना चाहता हूँ। जब उसने जवाब दिया कि ये उम्मत, ये मुसलमान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या कोई ईसाई यसू के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? तो सारा काफिला, सारा मजमुआ खामोश हो गया। कोई किसी को जवाब नहीं दे सका, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें आप पर कुर्बान, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी बीवी हम आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमारी प्रॉपर्टीज आप पर कुर्बान, सारी जानें, हर चीज से बढ़कर हमारे नजदीक अगर कोई शख्सियत है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारक अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये गुंडागिरी महाराज अगर नबी की शान को जानता तो वो गुस्ताखी नहीं करता। उसे आज हिंदू का एक महा लीडर कहा जा रहा है, लेकिन मैं उसे रामगिरी का जो नाम उससे जुड़ा गया है, राम का नाम एक बहुत अच्छा नाम है। रामगिरी का जो नाम उससे जुड़ा गया है, मुझे उससे ऐतराज है। इसका नाम रामगिरी नहीं होना चाहिए, इसका नाम गुंडागिरी होना चाहिए, इसका नाम हरामगिरी होना चाहिए, क्योंकि उसने हरामीपन अपना स्टेज में शामिल करके स्पीचेस में कहा है। लेकिन और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, श्री कृष्णा जी की मुझे वो बात याद आ रही है। श्री कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा था कि आए अर्जुन, तुम किसी के मजहब के बेस्ट पर्सन के बारे में बुरा भला ना करो, बुरा भला। क्या ये गुंडागिरी महाराज क्या श्री कृष्ण जी को फॉलो नहीं करता?
क्या ये किसी हमारे राम को फॉलो नहीं करता? क्या ये भगवत गीता को फॉलो नहीं करता? क्या इसने भगवत गीता के चैप्टर्स नहीं पढ़े? क्या किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कहते? लेकिन फिर भी इतना जानने के बावजूद भी ये लोग गुस्ताखी करते चले जा रहे हैं। ऐसे गुस्ताखों को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। हिंदुस्तान में एक ऐसा बिल पास किया जाना चाहिए जो नबी के गुस्ताखों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हमारी ये डिमांड है, हमारी आज डिमांड है कि इस जैसे जाहिल को फांसी के फंदे पर लटका जाए और अदालतों में घसीटा जाए। मौलाना सलमान अजहरी की एक बात बोलकर मैं मेरी स्पीच को खत्म करता हूँ, वक्त उतना नहीं है। मौलाना सलमान अजहरी की एक छोटी सी बात को इतना बड़ा वबाल बनाकर उन्हें जेलों में ले जाया गया, लेकिन ये पंडितों, ये नरसिंह आनंद, ये नुपुर शर्मा इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां करते हैं, लेकिन इनको जेलों में नहीं डाला जाता। क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहा गया? क्या ये वही हिंदुस्तान है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है? क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसकी आजादी को दिलाने के लिए सबने हिंदुस्तानी होकर इस देश की लड़ाई लड़ी थी? आज ये हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया जा रहा है, हिंदुत्व में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, भगवा आइडियोलॉजी में बदलने की कोशिश की जा रही है। आज फिर भी हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस गुंडागिरी महाराज को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसे फांसी के फंदे पर लटका जाए। ज्यादा वक्त न लेते हुए जरूरी बातें आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। जिस गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में हम और आप जिंदगी गुजार रहे थे और गुजार रहे हैं, वहां पर काफिर दो तरह के हैं। काफिर दो तरह के हैं, ये समझने की बात है। एक काफिर बस अपने काम में लगा हुआ है, वो अपने खुदाओं को पूज रहा है, वो मंदिरों में इबादत कर रहा है, वो अपने खुदाओं के साथ लगा हुआ है, वो किसी से झगड़ा नहीं बोलना चाहता, वो अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन दूसरा काफिर जो है वो नफरत फैला रहा है, दूसरा काफिर नफरत फैला रहा है। वो हुकूमतों के ऐवानों में भी बैठे हुए हैं, वो जगह जगह फैले हुए हैं, वो पंडितों के शक्ल में आएंगे, वो लोगों के शक्ल में आएंगे, वो भेष बदल कर आएंगे। इसीलिए तो फरमाया गया था, तमाम फरिश्तों से अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया, इनकार कर दिया। वो तो बड़े भेष में आया हुआ था लेकिन इनकार कर दिया। इसी तरह हमारे मुल्क में भी शन अंगेजी के दास्तानें मुख्तलिफ नहीं है, जगह जगह ये चीजें फैली हुई हैं। और अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले उस जमाने से, जब अल्लाह के नबी हरम में थे, उस जमाने में भी मौजूद थे। असवद अंसी अल्लाह के नबी की बेअदबी कर बैठा, और हर जमाने में कादियानी अल्लाह के नबी की बेअदबी कर बैठे, और नामूस रिसालत के हक में जगह जगह मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये इन्होंने चिंगारियां भड़काने की कोशिश की। लेकिन आज मुसलमान अपने माँ बाप की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता, भाई बहनों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक मुसलमान भाई की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक नॉर्मल हमारे मुल्क का एक आदमी किसी भी मजहब का हो, उसकी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप जाएं, अल्लाह के नबी के जान पर हम सब की जानें कुर्बान हो सकती हैं, यहाँ तक कि हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे जायदादें कुर्बान, हमारे कपड़े कुर्बान, सब कुछ कुर्बान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। मेरे दोस्तों अजीजों, मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। मुल्क में इंसाफ का तकाजा खत्म हो चुका है। मुल्क के अंदर दस्तूर बड़े निराले दस्तूर हैं, लेकिन दस्तूरों पर चलने का मामला आकर जब अटक जाता है, कानून के ऐवानों के अंदर गुंडागर्दी भरी हुई है, कानून के ऐवानों के अंदर मसाइल खड़े किए गए हैं, क्या करें? मुसलमान आवाज उठाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है हम आवाज उठाएं, हमारी जिम्मेदारी है हम आवाज पहुंचाएं, हमारी जिम्मेदारी है हम उसको कहें कि जिसने अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की और आगे करेंगे, उन सब के लिए ऐसा कानून हो, सिवाय फांसी के कोई रास्ता इनके लिए न हो। ऐसा एक कानून हो, इस कानून की आवाज उठाने के लिए हम और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। रबीउल अव्वल आ रहा है, आप हजरात से गुजारिश है सब दरूद कसरत से पढ़ना शुरू कर दें, कसरत से दरूद पढ़ना शुरू कर दें, हॉस्पिटल्स की सैर करना शुरू करें, गरीब बच्चे गरीब लोग जहां कहीं एडमिट हो उनकी खिदमत करना शुरू कर दें, पुलिस डिपार्टमेंट जहां कहीं ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो उनको पानी पिलाने का नज़म शुरू कर दें। सारा काम अल्लाह के नबी का काम है, ये सारे
के नबी के काम है। नबी को वो क्या पहचानेंगे? खुदा की कसम, मिंबर और महराब की कसम, अगर अल्लाह के नबी के शान में अगर वो गुस्ताखी करें कितनी भी करें, कुरान कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै। जा, मैंने तुझे कार के दरवाजे खोल दिए, बंगलों के दरवाजे खोल दिए, ऐवानों के दरवाजे खोल दिए, जा मैंने तुझे कुर्सियां दे दी। लेकिन अल्लाह फरमाता है हत्ता, अचानक जब वो खुश हो जाता है, नबी को गुस्ताखी करके खुश हो जाता है, इस्लाम को ठेस पहुंचा के खुश हो जाता है, अचानक अल्लाह जब पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, उन्हीं के लोगों से उनको कत्ल करेंगे। कमलेश तिवारी की मिसाल हमारे सामने जिंदा है। यकीनन कमलेश तिवारी की मिसाल हमारे सामने जिंदा है कि हमने जो बस आवाज उठाई थी, उन्हीं के लोगों ने उन्हीं को मार दिया और बता दिया कि नबी के शान में गुस्ताखी नहीं किया करते। याद रखें, नबी की गुस्ताखी करने वाले को दुनिया में ही अजाब शुरू हो जाता है, मुंह में कीड़े पड़ते हैं, उनके आंख पे कीड़े, सड़क सुकड़ जाते हैं, वो इंसान नहीं रहते, जानवर दरिंदे बनते हैं, इज्जत निकल जाती है उनकी, जलील होते हैं। यकीनन हम चाहते हैं, अभी भी मौका है, कानून के हुक्मरानों से और हाकिमीन से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं और अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि आप इसके लिए किसी भी मजहब का आदमी किसी भी मजहब को गाली दे तो एक जबरदस्त और सख्त कानून इंडिया में बनाना चाहिए। ಇಡೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹಾಂತಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮರುದಿನನೇ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಾಂತಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಬೈದಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬೈದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈದಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, वो जो बदमाश है, पाखंडी है, रामगिरी का नाम रख लेके गुंडागिरी जो कर रहा है, उसको फांसी देना चाहिए। और ये लोग समझ रहे हैं कि हम मुसलमान खामोश हैं, तो ये गलत फहमी में है। सोए शेर को जगाया नहीं करते स्वामी, जब शेर जग जाते हैं तो अपने आप लोग परेशान हो जाते हैं। मैं हमारे नौजवान साथियों से उम्मीद करता हूँ अभी न जागें, अभी टाइम बाकी है, क्योंकि आज जिस तरह से ये पाखंडी लोग जो काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट सजा देगी और उनको वही के लोग उनको मारेंगे, जैसा कभी हमारे मौलाना बता रहे थे। तो ये बात सही है, हुजूर के शान में कोई भी गुस्ताखी क्यों न करे, वो बदमाश कभी बचेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों को सो अल्लाह ताला सब्र दिया है, ये लोग समझ रहे हैं कि ये सब्र का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार से ये रामगिरी का बदमाश जो है उसे फांसी की सजा दी जाए और कानून के मुताबिक अगर काम करे जाए, वरना कभी ऐसा मौका ना है कि हम कानून के साथ में रहते हुए भी हम मजबूर हो जाए। तो इसलिए हमारी मजबूरी को आप समझें। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी ऐसा बंदा क्यों ना हो, कोई मुसलमान को गाली देता है तो हम खामोश रहे, मगर हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी में शान करेगा तो यहाँ पे जितने लोग हैं 1 मिनट में हम कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इस चीज को समझें कि हमारी जो काम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, तो हम उनको कोई भी एक अपना फकीर जैसा भी बंदा कौन सा भी नालायक क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, अगर एक भी बात गलत है तो हम सह लेने के काबिल नहीं रहेंगे। ये आखिरी मौका हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग समझाएं, आप अपने अपने लोगों से बतलाएं कि हमको गाली दे तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे हुजूर को गाली दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई करेगा क्या भाई? तो ये आवाज उनको दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। इतना कहते हुए मैं आप सब लोगों ने जो धूप में यहाँ ठहरा, ये इतना सबूत है कि हुजूर के शान में हम अपनी जान को कैसे लुटा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँ हमारे कानून से, रखवालों से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, यहाँ के डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कोई भी ये फकीर क्यों ना हो, ये बदमाश क्यों ना हो, पाखंडी क्यों ना हो, ना ये स्वामी क्यों ना हो, कौन सा भी कलर पहनने से स्वामी नहीं होता है, ये स्वामी नहीं है, ये बदमाश है। इस बदमाश को फांसी की सजा होना चाहिए। अब कानून के मुताबिक सजा दें, वरना हम कभी ऐसा मौका आएगा कि हम सजा देने के निकले तो बड़ी मुश्किलों का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा।
तो इतना कहते हुए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से शांति से यहाँ पे और अमन के साथ में जो आपने सबूत दिया है, उसी अमन और शांति के साथ यहाँ पे हम मोमेंटम देते हुए हम सब लोग अपनी अपनी जगह को जाएंगे। अपने जिस तरह से मौलाना हमारे को ये बताए कि हम लोगों की खिदमत कैसे करना है, ये आप रबीउल अव्वल से पहले अब अभी से चालू करेंगे, आज से ही चालू करेंगे। हम सबकी खिदमत करते हैं, हुजूर की शान में हमें जितना हो सके हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि कुछ तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में लोग यहाँ जमा हैं। वाकई तो मैं देखा हूँ कि हमें जो है सिर्फ जुलूस के नाम पर हमें जो है हमारी प्लेटफॉर्म पर ठहर को जहाँ हमें स्पीच करते नहीं, वहाँ लोगों को अल्लाह के रसूल के नाम पर जोड़ते हैं। लेकिन सच में अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की मोहब्बत में थोड़े थोड़े लोग यहाँ जुड़े। मैं बहुत कम अल्फाज में बहुत छोटे छोटे तो मैं एक दो तीन चीजें बोलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के तारीफ जो है मुसलमानों को क्या की जरूरत नहीं है उनके बताने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, अगर मेरे बात में अगर नबी अगर कौन बनते तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ए मोहम्मद हजरत उमर आपके नजदीक सबसे महबूब कौन है? तो उन्होंने बोलते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप हैं, उसके बाद में तुम्हें भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं एक मुसलमान के वास्ते अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे औलाद, तुम्हारी जान सबसे भी कीमती अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो तुम्हें मुसलमान नहीं है। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, तुम्हें मुसलमान नहीं। लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो आज जुम्मा है नमाज पढ़ने के साथ गोश्त खा तो अपने घर में आराम कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ये लोगों को जिंदा रखे, इसलिए जो है हम ये प्रोटेस्ट भी करते हैं। ऐसे रामगिरी के जैसे 1000 कुत्ते भी अगर भोगे तो इंशाल्लाह हम इसका भरपूर जो है विरोध करते हैं, इसे जवाब भी देते हैं। लेकिन हमें इस्लाम के दायरे में वक्त देते हैं। क्यों बोलेंगे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए कलमात हैं कि तुमने अगर कौन भी तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अगर तुम्हें बुरा भला बोल रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है? लड़े झगड़े नहीं करना है, उसका एहतजाज करना है, लेकिन तरीके से करना है। कैसा तरीका है? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, ईमान के 3 दर्जे हैं। एक अपने हाथ से रोकने के, अगर अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो रोको, नहीं तो जबान से, नहीं तो आखिरी का दर्जा जो है उन मुसलमानों के लिए तो एप्लीकेबल होता है जो अपने घर में बैठ कर अपनी शान से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन याद करते हैं, जुलूस मनाते हैं। ये लोगों से मोहब्बत की जरूरत नहीं है, ये लोगों से मोहब्बत की जरूरत है। आने वाले दिनों में ऐसे कुत्ते कौन से भी होंगे, अल्लाह का मैं अल्लाह का गवाह रखो बोलता हूँ, अल्लाह को गवाह रखो बोलता हूँ। ऐसा अगर हादसा अगर आज के बाद में कहाँ भी होता है तो इंशाल्लाह सबसे पहले बीजापुर में इसकी आवाज उठाएंगे। उठा सकते हैं हमें मुसलमान जो है बीजापुर में कैसे पावरफुल मुसलमान है, लेकिन हमें जो है खामोश होता है। कब खामोश होते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले तो। लेकिन हमारे माँ बाप को बोले तो हमें सब लड़ने तैयार होते हैं, हमारे घर वालों को बोले तो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन नबी के साथ मोहब्बत में जो है हमें लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? हम ना कमजोर करें। कौन कमजोर करें? हम ना सोनिया से वो मजबूर करेंगे, वो लोग कमजोर करें। आने वाले दिनों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जो है अगर ऐसे काम में भी हादसे होते हैं तो इंशाल्लाह हमें प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और एकजुट होकर उठाते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे हादसे नहीं होंगे। क्यों बोले तो आज के बाद में हर दिन जो है हर जगह जो है इसके प्रोटेस्ट शुरू होंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं जो सोए मुसलमान है, घरों में सोए हैं, उनको उठाने के लिए जो भी कोशिश करना है हमें मिलकर कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सभी हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि जोर से नारा दे, नारे तकबीर, सबसे पहले ये कहूंगा कि सब आप तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ आज जमा हुए एक कॉज पर। क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताख जिसे स्वामी कहना भी है तो बहुत बड़ी गलती है। वो रामगिरी जैसे लोग बोल रहे हैं वो गुंडागिरी है। आज हम सब यहाँ पर जमा होकर गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि एक ऐसा कानून बनाए जिससे कोई किसी के धर्म को गलत ना करे। कुरान खुला कहता है लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, अपना दीन आपके साथ, उसका दीन उसके साथ। और अल्लाह ताला खुद कहता है किसी दूसरे के भगवान को गाली मत दो। क्यों? मैं खुद हूँ यहाँ पर, अगर आप उसको गाली दे रहे हैं तो मुझे गाली तो लगती है। तो जब कुरान खुद कह रहा है तो हम दूसरों के हमारे रसूल के खिलाफ कैसे सुन सकेंगे कि कोई आया और हमारी शांति के खिलाफ कुछ कहे? वो इतना कहता है कि अत्याचारी है। अगर पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ है। एक शहर था, उस शहर पे जब वो गए थे तो सर से लेकर पैर तक खून से बहे, उतना उनको पत्थरों से मारा था वो शहर के ताइफ शहर में। तो तब अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं, बोलते हैं कि क्या आपका अगर आप कहें तो मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर इन पूरे कौम को खत्म कर दूं। लेकिन बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं नहीं, आज नहीं तो नहीं, ये नहीं तो इनकी नस्ल में कोई मुस्लिम कबूल करेगा। अरे ये है आप नस्ल उनकी ये है।
उनको तुम क्या अत्याचारी कहोगे? है स्वामी, तुमको स्वामी कहना भी गलत है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि एक अच्छा कानून बनाकर इस जो अत्याचार खुद करते हैं, लोगों को अत्याचारी कहते हैं, उनको कानून के दायरे में लाकर फांसी की सजा को उन पर मुकम्मल करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत तक जितनी भी उम्मत आने वाली है, ये डिक्लेयर कर दिया है कि तुम में से कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके साथ उसकी जान से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। याद रखो मुसलमानों, याद रखो मुसलमानों, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। और रसूल के ऊपर उंगली उठना, रसूल के ताल्लुक से गुस्ताखी करना, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर इन अल्फाज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हिंदुस्तान का कानून मौजूद है। सेक्शन 298A के तहत अगर कोई शख्स हिंदुस्तान का नागरिक किसी हस्ती के ताल्लुक से इंटेंशनली, मलाइसलियसली कोई बदउनवानी करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। मगर शर्म की बात यह है कि आज हुकूमत सो रही है और जो शख्स जिसका नाम रामगीर है, उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ हम मुसलमानों के रूह को मजरूह किया है। हम उम्मीद करते हैं इस हुकूमत से कि इस बदबख्त को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और बिहाइंड द बार भेज दिया जाए। शुक्रिया। कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि हमें ये मोहब्बत अपने घरों में रहकर जतानी नहीं है। जब बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की आ रही है तो हमें रास्तों पर आना जरूरी है और उस जालिम को, उस शख्स को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालना जरूरी है। जब इस रामगिरी ने इस मौके पर जो है ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो हमें दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन इसके बावजूद आज भी ये आजाद घूम रहा है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने बताऊं, जब इस बात की शिकायत महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंची तो अफसोस, एक जहालत वाला बयान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया कि इस मुल्क के अंदर साधुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, आप लोग साधुओं का कुछ नहीं उखाड़ सकते बोलकर। मैं ऐसे जाहिलाना जुमले का जवाब देना चाहता हूं कि हमें कोई साधुओं की तादाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि साधुओं को भेष में छुपे ऐसे पाखंडी बाबाओं को जेलों के पीछे पहुंचाना हमारा मकसद है। हमें हिंदू मुसलमान करना नहीं है, क्योंकि हम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम उन शख्सियत की उम्मत है जो इस मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन शांति का पैगाम लेकर आए हैं। अरे हमें क्या तुम अमन शांति सिखाओगे? हम तुम्हें बताते हैं कि आका की शान में गुस्ताखी के बावजूद आज भी मुसलमान खामोशी से प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये अमन शांति का मिसाल है। वरना याद रखो, तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के सामने इल्तिजा करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बीजापुर के अंदर शहर के जो लोग जमा हुए हैं, बहुत खुशी की बात है कि तमाम यहाँ पर सियासी पार्टियों के लीडर, सभी जो है तंजीमों के लीडर, सब लोग यहाँ पर मौजूद होकर इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हमारे लिए पार्टियां बाद में है। अगर हमारे सर का ताज कोई है, हमारे लिए सर का ताज कोई है इस मजहब के लिए, इस मुसलमान कौम के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं एक बात का जिक्र आपके सामने करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये रामगिरी, इन्हें स्वामी का ड्रेस देने, इन्हें क्या स्वामी नहीं है? ऐसे ड्रेस पहन को बहुत स्वामी आते हैं, बहुत स्वामी जाते हैं। जो स्वामी हैं, हमारे बसवेश्वर स्वामी हैं, सिद्धेश्वर स्वामी, वैसे स्वामी कौन से भी जात भेद नहीं करते, एक छोटे रहते हैं थोड़े। इनके वास्ते क्या बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे हुजूर के सामने जो भी गुस्ताखी करेगा उसे ताकत भी है, हमने वार्निंग भी है। हमने बोलेंगे, हमारे माँ बाप को बोलेंगे, हमें सुनेंगे। हमारे हुजूर को जो भी बोलेंगे उसे पीठ लगेंगे, उन्हें कि कहाँ भी रहो पीठ लगेंगे।
एक है हमें डर को बैठने वाले नहीं, हमारे हुजूर के शान में कोई भी गुस्ताखी करेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे पीट लगेंगे, उसके घर तक जाएंगे, घर में घुसेंगे। ये हमारा हुजूर के वास्ते जान भी देंगे, न गाँव भी छोड़ेंगे, मरेंगे मिटेंगे, 1 सेकंड नहीं, आधे सेकंड में। उसे क्या डरने का नहीं। ऊपर कानून कार्रवाई करेंगे, कानून कार्रवाई के बारे में पीट लगेंगे। क्या होता उसे हमारे कौन सी भी सरकार अंदर पीट लगेंगे। महाराष्ट्र सरकार अंदर, केंद्र सरकार अंदर, हमारी कर्नाटक सरकार अंदर, इसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो कर को। वैसा कौन से स्वामी नहीं बोलते, इन्हें स्वामी के ड्रेस पहने ने मांतगिरी, मांतगिरी नहीं है, इन्हें रामगिरी नहीं है, मांतगिरी है। ऐसे को छोड़ना नहीं, कभी एकला बोले दूसरा बोलने की कोशिश करेंगे तो होशियार। हमें किसके मजहब को छेड़ते नहीं, हमारे मजहब को तुम्हें छेड़ रहे, हमारा 10 गाली जो हमें खाते हैं, हमारे हुजूर को कोई भी बात नहीं करना। जो भी बात करेंगे उसे हमें छोड़ेंगे नहीं, उसके घर तक जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, जेल पहुंचेंगे, जेल पहुंचा तक छोड़ेंगे न को। कैसा शान से आए उतना शान से सोपे मिला को करान देंगे। भी क्या भी पुकारा पुकारी, क्या भी करना करना, बात करना न को। डीसी कौन है, तहसीलदार साहब है क्या, इसको है डीसी साहब है, कौन है तहसीलदार साहब है, बड़े महकोरे साहब डीसी साहब के मान के क्यों रहा एसके साहब, एसके साहब हाँ बुलाओ, अंदर बुलाओ। बड़े बड़े नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।